Welcome back to another session of Problem Solver series. My name is Aditya Manghani from V Development. I hope कि आप सब अपने घर पे सेफ हैं और अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं क्योंकि इवन तो लॉकडाउन स्लोली खुल रहा है बट अब तक जो कोविड है वो पूरी तरीके से चला नहीं गया है. इट्स स्टिल देयर. तो प्लीज हेल्थ का ख्याल रखिए. हमारा पिछला जो सेशन था प्रॉब्लम सॉल्वर सीरीज का, इट वाज अबाउट फाइनेंस एंड आई एम श्योर कि काफी लोग को क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरीके से ब्रिज फाइनेंस वर्क करता है सेल्फ डेवलपमेंट में, किस तरीके से हमें पूरी फंडिंग की जरूरत लगती है और कैसे वी डेवलपमेंट 2000 करोड़ तक के भी प्रोजेक्ट्स का फाइनेंस अवेलेबल करवा सकता है फॉर सेल्फ डेवलपमेंट. आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस सिचुएशन में घर होना काफी इंपॉर्टेंट है. एंड हम लोग रोज देखते हैं, एवरी थर्ड और फोर्थ डे देखते हैं कि कोई ना कोई सोसाइटी का बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है. खार में कोई बिल्डिंग गिर रही है, बोरिवली में कोई बिल्डिंग गिर रही है, बीएमसी का कोई नोटिस आ गया कोई सोसाइटी में कि आपको बिल्डिंग वेकेट करनी पड़ेगी. ऐसे न्यूज डे बाय डे इंक्रीज होते जा रही है. सो इसीलिए आज का जो सेशन है वो उस सोसाइटीज के लिए है जो काफी खराब कंडीशन में है, बिकॉज हमें उन्हें बताना है कि आगे बढ़ने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए. बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा कोई मेंबर को नहीं चाहिए होगा कि वन फाइन डे ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग एंड उसे बीएमसी का नोटिस आया है कि आपको बिल्डिंग वेकेट करना है. तो ये सब चीजें आज डिस्कस करने के लिए आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय पैनलिस्ट्स विद यू. मिस्टर प्रणय गोयल, हु इज द सीईओ एंड ओनर ऑफ वी डेवलपमेंट, द फाउंडर ऑफ वी डेवलपमेंट. साथ में चिदम्बरम अनंतरमन सर जी भी है, हु इज द सीओओ जो ऑपरेशंस संभालते हैं पूरे वी डेवलपमेंट के. तो सर आई वुड लाइक टू आस्क बोथ ऑफ यू ऑल फर्स्टली कि आपका क्या व्यू है इसके बारे में, इस सिचुएशन के बारे में. हाउ क्रिटिकल इज दिस? Do you want to take? Anantraman sir, you are. सर आपको थोड़ा लाउड होना पड़ेगा प्लीज. Okay. Yes. Am I audible? Yes. Okay, thank you. Good morning. Namaste to all. Thank you for inviting me, Aditya. I'll be happy to share my thoughts on this subject. Now, as you mentioned, how critical it is. जब आप बात बोलते हैं तो बेसिक क्वेश्चन यही आती है कि what is dilapidated? Let us understand technically what is dilapidated. Generally, BMC classifies buildings into three categories: C1, C2, C3. C1 is beyond repairs and needs to be vacated immediately. That is technically what you can actually call dilapidated. And in C2 category, again, there is a division of C2A and C2B. In C2A category, it is pretty bad in terms of attendance to structural repairs. Maybe some part of the building is critical and that needs reconstruction, but it is not classified as beyond repairs. So in a technical sense, it is almost dilapidated and it can go into C1 pretty quickly. So even though it is technically not dilapidated, they should take immediate action. And C2B category, again, extensive repairs are required, and C3, minor to moderate repairs. This is the framework of what we say is dilapidated. Now, as far as criticality is concerned, once you say that a unsafe hai, building unsafe hai, rehne ke liye, there is no question of waiting. Normally in redevelopment, you talk about what is the benefits that you will get and when can I do it? Shall I wait for the right time, for the right benefits to come, for the market conditions to change? And how to go about it. These are the questions generally discussed. But in the case of dilapidated building, two questions are already answered for us. One is you need to do it now, definitely. It's not a question of whether you need to do it. You need to do it and you need to do it now. The only question is how to do it and how quickly to do it. Sure. So here, I think the focus is already shifted from maximization of benefits to safety and urgency. It is already shifted. So in this situation, I think technocrats can make a contribution by providing clarity on the options available and how in a sure-footed way you can go ahead. And to that extent, I think this webinar is pretty useful and I'm looking forward to this interaction. Sure. Thank you, sir. प्रणय जी, आपके क्या व्यूज होंगे इस पे प्लीज? Hi, good morning to everyone.
So the topic for today is dilapidated buildings. Basically, ये जो need है, why this need was there and why did we organize this webinar? Basically, जैसे आदित्य ने इनिशियली बताया कि आज एवरी सेकेंड और थर्ड डे जैसे मानसून आते हैं हम लोग सुनने लगते हैं कि ये बिल्डिंग यहाँ पे कोलैप्स हुई है और कोई बोरिवली, कोई खार, कोई बैंड्रा, कोई फोर्ट. बट हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन, ये प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए. डिलैपिडेटेड अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है. डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट इज अनदर इशू, बट ये किस तरह से प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए एट अ सिटी लेवल. डेफिनेटली गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कुछ एक्शंस लिए हैं. अभी कुछ MCS एक्ट में चेंजेस हुए हैं जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे. बट हाउएवर व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वी एज प्रोफेशनल्स इन द इंडस्ट्री, societies, as part of the stakeholders, as the major stakeholders, what are our responsibilities? Why do we depend on the government itself? हम लोग क्या कर सकते हैं प्रोएक्टिवली, किस तरह से कॉन्क्रीट वे में आगे बढ़ सकते हैं. जैसे अनंत रमन सर ने बताया कि किस तरह से आगे आप कॉन्क्रीट राइट वे में बढ़ सकते हैं. There could be various options as depending on your categories of the building, आप repair, redevelopment, self redevelopment, what क्या वे आपके लिए काफ़ी राइट है वो आपको सिलेक्ट करना होगा. लेकिन व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन दैट वील डिस्कस टुडे. एंड यस, सो हाउ क्रिटिकल इज, आई डोंट थिंक सो ये शायद किसी को जानने की या हमें बताने की ज़रूरत है. आज सब जानते हैं कि ये सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, क्योंकि ये जब नंबर्स की बात की जाए तो मोर देन 15,000 सोसाइटीज डिलैपिडेटेड डिक्लेयर्ड हैं. दिस इज अ डिक्लेयर्ड DMC by MADA. These are the numbers, and every 5 days there are 4 buildings collapse. These are the statistics जो आज पिछले 5 साल से चल रही हैं. मतलब करीबन 300 बिल्डिंग्स गिरती हैं सालाना, और ये 14,005 जो 15,000 बिल्डिंग्स है ये एज ऑन डेट है. एवरी ईयर दिस नंबर्स कीप्स इंक्रीजिंग, जिसके प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. सो दिस इज अ ह्यूज गैप व्हिच वी नीड टू केटर, वी नीड टू फोकस ऑन इट. So I think without wasting much of time, let's start the conversation. क्योंकि सर ऐसे काफी सोसाइटीज हैं जिसने हमें काफी सारे प्रॉब्लम्स बताए अपने, वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. छोटे सोसाइटीज भी हैं और काफी बड़े सोसाइटीज भी हैं जो खराब कंडीशन में है, क्योंकि 30-40 इयर्स हो चुके हैं एंड देन फॉर वेरियस रीजंस आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं जो हम लोग को ऑलरेडी आ चुके हैं सोसाइटीज से. एंड इन द मीन टाइम जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस है तो जो Q&A सेशन है, Q&A का टैब होगा नीचे, आप वहां पर सारे क्वेश्चंस अपने पुट अप कर सकते हैं. एंड एक हम लोग जितने हो सकते हैं उतने आपको आंसर करेंगे. तो पहला क्वेश्चन जो है अनंत रमन सर एंड प्रणय सर दोनों आपके लिए ये क्वेश्चन है. दिस इज अ बिल्डिंग, our building is more than 45 years old. We did a structural audit 3 years back, and at that time it said we need not carry out major repairs. The members of the society are not in a position to contribute any funds, and hence we decided on redevelopment. Okay, sorry. तो ये क्वेश्चन सर कैसा है कि हमारी सोसाइटी जो है वो 45 years old के ऊपर है, और हम लोग ने स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया 3 साल पहले, और स्ट्रक्चरल ऑडिट में ये आया कि आपको मेजर रिपेयर्स करवाने हैं एंड अभी मेंबर्स के पास कंट्रीब्यूट करने के फंड्स नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि रीडेवलपमेंट में जाएंगे. सो कंसीडरिंग टुडेस मार्केट सिनेरियो, वी आर नॉट एबल टू गेट अ डेवलपर who will execute the project properly. Is there some way where we can speed up the process to get permission so that we can go for self redevelopment? तो ये पूछ रहे हैं कि आज के मार्केट में रीडेवलपमेंट के लिए आगे जाने के लिए उन्हें कोई बिल्डर नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें लगता है कि वो बराबर से एग्जीक्यूट कर पाएगा. तो क्या सेल्फ रीडेवलपमेंट में वो लोग कुछ फास्ट ट्रैक मोड पे जा सकते हैं जहां पे उन्हें सारे परमिशंस मिल सकते हैं? प्लीज सर, अगर आप इस पे कुछ थॉट्स थ्रो कर सकते हैं. मैं अनंत रमन सर. Please, go ahead. So yes, so the moment you are dilapidated, आपके पास 3 रूट हैं. अगर dilapidated जैसे अनंत रमन सर ने कैटेगरीज बताई, तो फर्स्ट इज रिपेयर्स, अदर इज रीडेवलपमेंट एंड थर्ड इज सेल्फ रीडेवलपमेंट. नाउ जब आप रिपेयर्स की बात करते हैं, रिपेयर्स अगर पॉसिबल है, अगर आपके ऑडिटर ने बताया है कि रिपेयर्स पॉसिबल है, यू नीड टू बी श्योर कि क्या कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स है. सेकेंड थिंग, व्हाट इज द गारंटी और व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन दैट इज पॉसिबल आफ्टर दोज रिपेयर्स. Because repairs is not a permanent solution, it's just a temporary solution, maybe a year, 2 year, 3 year. Again, it is completely dependent on the structural audit.
अगर आपके रिपेयर्स पॉसिबल हैं आप रिपेयर्स करें, अगर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द सोसाइटी अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही, दे हैव टू ऑप्शंस ऑफ रीडेवलपमेंट एंड सेल्फ रीडेवलपमेंट. द क्रिटिकल पार्ट इज दैट यू हैव टू वेकेट द प्रीमाइसेस इमीडिएटली, बट ऑल्सो इंश्योर कि ये क्रिटिकल स्टेज पे और ये ऐसे स्टेज पे आप कोई हेस्ट में डिसीजन ना लें. सोसाइटीज़ अक्सर जो हमने देखी है डिलैपिडेट में, जब वो वेकेट करने का टाइम आता है तब काफ़ी हेस्ट डिसीजंस लेते हैं बिकॉज दे आर इन नीड ऑफ रेंट. रेंट बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर हो जाता है कि हमें खाली कर देंगे, रेंट कहाँ से मिलेगा. सिर्फ वो टेम्परेरी प्रॉब्लम जो है रेंट के चक्कर में, वो काफ़ी सोसाइटीज़ ने गलत डिसीजंस ले लिए जो आज के बाद काफ़ी सालों से डेवलप भी नहीं हुई है. ऐसी डिलैपिडेट बिल्डिंग्स हैं. तो जस्ट एक सजेशन रहेगा, एक एडवाइस रहेगी कि ऐसे टाइम पे आप क्रिटिकल डिसीजंस ना लीजिए. सबसे पहला काम है हमें खाली करना. रेंट आपको मिलेगा 1 महीने नहीं 2 महीने के बाद मिलेगा, बट डेफिनेटली मिलेगा. रेंट बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इमीडिएट प्रॉब्लम. उसके बाद जो डेवलपमेंट है, ये दोनों चीज़ किस तरह से फुलफिल होंगी. अगर आपके पास राइट डेवलपर है, ऑप्शन 1. even if there is no right developer, because at this point of time builders ही काफ़ी obviously आप जब नॉर्मल के सिनेरियो में आपका रेंट शुरू होता है आपके कंस्ट्रक्शन कमेंसमेंट के बाद, जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है सीसी आता है, तब यहाँ पे डेवलपर्स को भी काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा जब आप सीसी के पहले आप रेंट डिमांड करेंगे. अल्टीमेटली वो कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट में बफर होगा, प्रोजेक्ट से ही लिया जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ रीडेवलपमेंट, व्हाई डोंट यू ऑप्ट फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट इवन इन दिस केस सिनेरियो. सोसाइटीज अक्सर पूछते हैं कि डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स हैं, हम लोग खाली तो कर देंगे, बट सेल्फ रीडेवलपमेंट, हाउ दिस कुड हेल्प एंड व्हाट इज द डिफरेंस फॉर अ डिलैपिडेटेड बिल्डिंग, विच नीड्स टू बी अंडरस्टैंड बाय द सोसाइटीज. सेल्फ रीडेवलपमेंट में भी बैंक आपको आईओडी के बाद फंडिंग देगा, लेकिन आप अगर खाली करते हैं आपका काम इमीडिएटली शुरू हो सकता है. प्लानिंग अप्रूवल्स काफ़ी फास्ट करनी होंगे सोसाइटीज़ को और प्रोफेशनल्स को. At the same time, even we can get investments not only for the rent, but also we have to get for IOD, like any other projects. The major difference for this is project आपके control में होगा. Even in this case scenario, you are not making any decisions in haste. Nobody is taking your undue advantage. These are the critical points because of which self-development could be a better option if societies opt for. The only thing is, please do not take a decision in haste. आप vacate कीजिए immediately and उसके बाद आप decisions open रखें. So this is right. So जैसे सर ने बताया, प्रणय सर ने बताया कि प्लीज आप haste में decisions मत लीजिए. आपको रेंट मिलेगा ऑब्वियसली 1 या 2 महीने के बाद, even if not immediately, बट आप प्लीज क्रिटिकल डिसीजंस जो है वो सोच समझ के लीजिए, सो दैट आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आए. आनंद रमन सर, आपके क्या व्यूज होंगे? प्लीज इफ यू कुड आंसर स्पेसिफिकली फॉर दिस क्वेश्चन. What I heard, Aditya, is that सर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हिंदी में बात कर सकते हैं क्योंकि हमारे काफी व्यूअर्स. बिल्कुल. उन्होंने ये बताया कि बिल्डिंग्स जो हैं अच्छे कंडीशन में नहीं है. अभी टेक्निकली ये कौन से कैटेगरीज में आती है, दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ. अगर वो C2 में आती है, हाँ, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा. और एक डिसीजन लेने के लिए थोड़ा बहुत क्लैरिटी की जरूरत है और सबको कंसेंसस की जरूरत है. तो फर्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से आप इमीडिएटली ये कीजिए कि आप एक फिजिबिलिटी स्टडी कीजिए इमीडिएटली, सो यू नो क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास. अगर सेल्फ रीडेवलपमेंट आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से एक डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा. साथ साथ में ये जो प्रोसेस है सेल्फ रीडेवलपमेंट का वो भी मालूम हो जाएगा. ये टाइम में आप अंदर एक कंसेंसस बना सकते हैं और इमीडिएट फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वरीड ऑलरेडी है, ज्यादा आप वेट नहीं करना चाहते, तो टेक द फर्स्ट स्टेप. दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. ठीक है, तो सर जैसे आनंद रमन सर ने भी ऐड किया कि यू टेक द फर्स्ट स्टेप, और आप सबसे पहले नंबर्स पे क्लैरिटी लेके आ जाइए, सो दैट आपको पता चले कि आपका प्रोजेक्ट एक्चुअली कितना वायबल है, एंड उसके बेसिस पे आप फिर विकेट कर सकते हैं एंड रेंट फिर फॉलो होते रहेगा. तो आई एम श्योर पहला क्वेश्चन जो है आंसर्ड हो गया. सेकंड क्वेश्चन जो है सर, दिस इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चूजिंग सेल्फ रीडेवलपमेंट ओवर रीडेवलपमेंट इन सच अ केस सिनेरियो. तो सर अगर बिल्डिंग खराब कंडीशन में है, डिलैपिडेटेड ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुकी है,
तो सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाने का क्या बेनिफिट है वर्सेस बिल्डर के साथ जाने का? सो अनंतरमन सर, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू फर्स्ट प्लीज. ओके, ऐसे जो दोनों सॉल्यूशंस हैं, व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स इन दिस पर्टिकुलर केस? जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन में पूछा, ये जो सिचुएशन है आज, वेदर मार्केट सिनेरियो हो, बिल्डर्स आगे नहीं आ रहे हैं विद लेट अस से अट्रैक्टिव ऑफर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स में ये होता है कि सोसाइटी इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं रहती है नेगोशिएशन के लिए, बिकॉज वो नीड में है. So even if they are going for builder-led builder-led development, वो negotiating power काफी कमती हो जाती. That is one major reason why I think, मुझे लगता है कि self redevelopment को explore करना चाहिए. That is one major reason. Second reason is transparency. हमारे numbers की जो बात करते हैं, what is the size of the project, क्या हो सकता है, what is the kind of benefit, what is the time frame, कौन करेगा, what will be the details of right from design, जो भी है, वो पूरी प्रोसेस सेल्फ रीडेवलपमेंट में काफी ट्रांसपेरेंट होती है. पूरा राइट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश पूरा कंट्रोल होता है. दैट इज द सेकंड बिग एडवांटेज. तो आज के सिनेरियो में डेफिनेटली सेल्फ रीडेवलपमेंट बिकम्स ऑलमोस्ट एन ऑब्वियस चॉइस अकॉर्डिंग टू मी, ये सिचुएशन में ऐसा मुझे लग रहा है. ओके ओके सर, जैसे आपने बताया कि द कंट्रोल इज विद यू, नंबर्स आपके पास पूरे पता रहते हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है प्रोजेक्ट में, क्योंकि सोसाइटी खुद कर रही है. सो दैट्स व्हाई इट हैज एन एज ओवर अ बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट. सो थैंक यू. मिस्टर प्रणय गोयल, प्लीज अगर आप कुछ व्यूज दे सकते हैं इस पर. आई थिंक व्हाई इज सेल्फ रीडेवलपमेंट बेनिफिशियल? या आई थिंक अनंतरमन सर ने बहुत अच्छे पॉइंट्स कवर किए हैं और कुछ पिछले क्वेश्चंस में भी कुछ कवर किए हैं, जैसे कि जो क्रिटिकल टाइम है, दैट प्लीज अंडरस्टैंड. जो टाइम आता है डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स के लिए जब वेकेट करने का नोटिस होता है, वी हैव सीन दैट नोटिस, पीपल गेट इनटू लॉट ऑफ पैनिकी स्टेट. 7 days का नोटिस आता है, 30 days का नोटिस आता है, उसमें कुछ सोसाइटीज कोर्ट जाती हैं, टाइम लेती हैं. बट ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड कि बीएमसी है या कोर्ट है, किसी को भी आपको खाली नहीं करवाना है बिल्डिंग में जस्ट फॉर देयर बेनिफिट. इट्स योर सेफ्टी फर्स्ट. गवर्नमेंट ऑल्सो वांट योर सेफ्टी, इसलिए वो आज नोटिस देती हैं आपको खाली करने के लिए. बट वो नोटिस के दौरान उसको आप सीरियसली लें. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, बट अब वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए लॉन्ग टर्म आपके बेनिफिट्स को या आपके कंट्रोल को लूज ना करें. इसलिए nobody should take your undue advantage. So it's not that every builder will take an undue advantage, but जब वो सिचुएशन होती है, अगर आप जैसे अनंतरमन सर ने कहा, आप फिजिबिलिटी क्लियर करें, सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हैं, तो आपका कंट्रोल पूरा होगा. Your immediate problem would be rent that could be resolved through self-development through number of ways. But after that, once the rent part is resolved, आपके लिए project will be in your control. The only thing is we need to act immediately for the approvals. हमें approvals लाके CC लाके काम immediately start करना होगा, ताकि हमारे जो overheads हैं उसका cost कम हो और project smoothly शुरू हो जाए और completion हो. So even I would say the same thing. Right. So somewhat आपने भी वही सेम बताया कि अगेन हेस्ट में मत जाइए, सेल्फ डेवलपमेंट इज बेटर, क्योंकि पूरा नंबर्स आपको पता है, और क्योंकि नंबर्स आपको पता है तो अनड्यू एडवांटेज आपका कोई ले नहीं सकता है, क्योंकि आप खुद ही. राइट. सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक टिपिकल सोसाइटी का है जो C1 में डिक्लेयर हो चुकी है. सो आई एम अ चेयरमैन ऑफ अ सोसाइटी and our building is under C1 category. So ये already C1 category में declare हो चुकी है. Our members did not take decisions on time, and unfortunately we are at a stage where we have already got the notice from BMC to vacate the building. तो ये building already C1 declare हो चुकी है. Members ने कुछ decisions नहीं लिए कि redevelopment करना चाहिए कि repair करना चाहिए, और अभी उन्हें notice मिल चुका है BMC से building vacate करने के लिए. Now we want to go ahead for self redevelopment, but is there a way that we can get funds at immediate basis, since we can't wait for the IOD to get loans and then vacate the building? तो सर क्या ऐसा कोई फास्ट ट्रैक मोड है जिस पे उन्हें फंडिंग मिल सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली सोसाइटी अब वेट नहीं कर सकती है IOD आने के लिए, क्योंकि उसी के बाद पूरे फंड्स आते हैं और वेकेट होता है. Correct. तो प्रणय सर प्लीज अगर आप कुछ बता सकते हैं. There are 2 things immediately that we need to start, rather 3 things. First is आप
जैसे ही स्टार्ट करते हैं, अनंत रमन सर ने एक चीज बताई, फीजिबिलिटी रिपोर्ट। आप वेकेट करते हैं, इमीडिएटली आप किसी को अपॉइंट करें फीजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए। आप जिससे काम करना चाहते हैं उससे आप फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाएं। फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के बाद आपके पास सारे प्रोजेक्शंस होंगे। एक एक सजेशन है, जब आप रेंट पकड़ते हैं, यू डू नॉट कंसिडर द पीरियड ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन टाइम, बट यू हैव टू कैलकुलेट इन द फीजिबिलिटी रिपोर्ट आप 1 साल एडिशनल रेंट कंसिडर करें, एब्सोल्युटली, बिकॉज आपका आईओडी सीसी आने में काफी टाइम जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कॉस्ट में कंसिडर करना होगा। और वो फीजिबिलिटी में कंसिडर करने के बाद द मोमेंट यू स्टार्ट प्लान्स, एक तरफ से आप प्लान्स बनाएं, अप्रूवल्स की तरफ बढ़ें। एंड द थर्ड थिंग इज यू लुक आउट, मे बी योर डेवलपमेंट मैनेजर हैज टू गेट यू एन इन्वेस्टर ऑल्सो, अगर जो आपके इमीडिएट रेंट के प्रॉब्लम्स को कवर करे। अब वो इन्वेस्टर किस तरह से आएंगे, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि दैट कुड कम ऑन आइदर डेट बेसिस, इक्विटी बेसिस, यानी कि इंटरेस्ट पे आ सकते हैं, या तो आपको एक डिस्काउंटेड फ्लैट सेल कर सकते हैं। बट ये इन्वेस्टर्स तभी आएंगे, कॉन्फिडेंस तभी आएगा वंस यू हैव द क्लैरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, फिजिबिलिटी राइट, होंगे, राइट, कुछ प्लान्स प्लेस पे होंगे, इन्वेस्टर्स कुड बी अट्रैक्टेड इमीडिएटली। श्योर श्योर। तो जैसे आपने बताया कि फर्स्ट स्टेप अगेन वुड बी द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। आप रेंट का भी उसमें बफर पकड़ के चलिए, क्योंकि आपको इमीडिएट शायद वेकेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन से नहीं बल्कि आप डे वन से ही रेंट कंसिडर करके चलिए। एंड फाइनेंस किस तरीके से आएगा वो ऑब्वियसली डेवलपमेंट मैनेजर लेके आएगा, आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स लेके आ सकते हैं, और सोसाइटी कैन कंट्रीब्यूट। बट Society can contribute also to add जब process में, as what we have always seen as there are internal purchase also which happens. हमारा प्रोजेक्ट का फोकस जब प्रोजेक्ट की तरफ देखते हैं तो वो डिलैपरेट से निकल के जब वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रोजेक्ट्स इनिशिएशन, राइट वहाँ पे वो इंटरनल परचेज हो सकते हैं, काफी कुछ चीजें वर्कआउट हो सकती हैं। राइट राइट राइट। बट फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आप कैलकुलेशंस पूरे कर दें, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर आएगा तो वो श्योर। अनंत रमन सर, प्लीज इफ यू कैन ऐड समथिंग। I think Pranay has already clarified on the matter of funds. In this particular case, they have already received notice. So I think the responsible thing to do would be to immediately act. वो act करने के लिए immediately please take up the feasibility report. उसमें से numbers आएंगे. वो numbers से जैसा आपने बताया, Mr. Aditya, they can always see whether there are members who are willing to contribute something, Right. not for the project, but for buying some additional area, etc. Right. So right. the initial जो part है up to IOD and all that can also be taken forward. Financed. Yes. So ऐसे options जब हम first या second step लेते हैं तभी options वो खुलते हैं. But in this particular case you have to take that. So सबसे पहले प्लीज आप एक्ट कीजिए so that आपको numbers की clarity आए, and उसी के बाद आप forward आगे बढ़ सकते हैं. So that would be the solution to this question. Sir, next एक society है. We are a society in Malabar Hill which consists of all senior citizens. The condition of our building is not that great. We have not yet done a structural audit report, but we want to get it redeveloped. How can we go ahead for self redevelopment? Okay, तो एक सोसाइटी है जो मलाबार हिल में है, एंड यहाँ के सारे जो मेंबर्स हैं सारे सीनियर सिटीजन हैं, एंड उन्होंने अब तक स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट नहीं करवाया है, बट कंडीशन बिल्डिंग की काफी अच्छी नहीं है. तो हाउ कैन दे गो अहेड फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट? So again the same thing, the condition is not great, so obviously they can opt for self redevelopment. Is the same answer. आप रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट के बाद डेवलपमेंट मैनेजर से सेल्फ रिडेवलपमेंट थ्रू कर सकते हैं. It's the same process what we covered. I think it's more or less it's covered in the previous question. Right. Okay. There's one thing about that previous question. Obviously, that particular society has not done structural audit report. That's what they have mentioned. No, not yet. अब तक किया नहीं है. So anyway, it is mandatory nowadays for old buildings, whether it is 3 years or 5 years, depending on the age of the building. So mandatory जो उनको करना है, that has to be done. So even before we get into, तो वो तो immediately कर सकते हैं. They don't have to wait for anything. Mandatorily, once you do this, then you at least get an idea of what is the time frame that you have to proceed. If it is critical, then lesser time, much lesser time. If it is not critical, then you can take a little more time
to plan things in a more elaborate way. That's all. Okay, fair. Next question जो है, I am a society member of a cooperative housing society in Khar. Our building got a notice from BMC in January 2020. We have vacated the building, but since then our members have not yet decided to go ahead because COVID happened. Considering the market, okay. So ये भी जो question है sir, next question, ये भी almost same question ही है कि एक सोसाइटी है खार में जहां पर BMC का नोटिस जनवरी में आ चुका है, जनवरी 2020 में. बिल्डिंग ऑलरेडी वेकेट कर चुके हैं सारे मेंबर्स, बट अब तक आगे नहीं बढ़े हैं बिकॉज ऑफ कोविड. और अभी कोई बिल्डर वहां पर कुछ इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा है, इवन तो इट इज लोकेटेड एट अ गुड लोकेशन. सो हाउ डू दे गो अहेड? बिकॉज अगर बिल्डर नहीं है तो सेल्फ डेवलपमेंट इज द ओनली ऑप्शन. सो यस, अगेन, yes, correct. So it's the same thing, Aditya, again. So I would take this further. In fact, कि अभी प्रोसेस को किस तरह से आगे बढ़ा जाए, सेल्फ डेवलपमेंट करना है. But there is also, I will club this question with another question by Mr. Anthony Norona, okay, where he's asking that he's from Holy Family Cooperative Society, IC Colony. What is the pathway for society to follow to initiate self development as per government guidelines and society bylaws? So I would say कि आज रेडीनेस है, सोसाइटी रेडी है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द इनिशिएशन पार्ट. एंड क्लबिंग जो खास सोसाइटी बोल रहे हैं, तो उनके लिए भी यही पार्ट है कि आपने आज जो स्टेट पे है आप इनिशिएट कीजिए. राइट. आपको सोसाइटी में रेजोल्यूशन पास करना होगा विद मेजॉरिटी सेइंग दैट यू वांट टू गो एट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट. द नेक्स्ट स्टेप वुड बी प्रिपेयरिंग, obviously अपॉइंटिंग अ डेवलपमेंट मैनेजर फॉर द फीजिबिलिटी स्टडी. फीजिबिलिटी स्टडी होने के बाद आप उसको डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट करें कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए. देन द एंटायर प्रोजेक्ट वुड स्टार्ट विद डिजाइंस, अप्रूवल्स, गेटिंग द अप्रूवल्स एंड गेटिंग द आईओडी एंड स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन. सो ब्रॉडली दिस इज द स्टेप्स और दीज आर द प्रोसेस दैट द सोसाइटी शुड टेक. ये कितना फास्ट एक्ट करेंगे सोसाइटी के ऊपर है. जैसे जब जितना फास्ट सोसाइटी एक्ट करे, जितना फास्ट आपके डेवलपमेंट मैनेजर आपको सपोर्ट करेंगे, उतनी फास्ट आप सीसी लेके आ सकते हैं, उतने फास्ट आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं प्रोजेक्ट में. सो अगेन, देयर इज अनदर पॉइंट, एट व्हाट स्टेज ऑफ दिस पाथवे एन एग्रीमेंट विद यू एज डेवलपमेंट मैनेजर विल बी साइंड. आई थिंक दैट इज द मोमेंट फीजिबिलिटी स्टडी करें, फिर आप डेवलपमेंट मैनेजर के साथ आप अग्रीमेंट साइन करें फॉर द प्रोजेक्ट, एंड देन यू कैन टेक द प्रोजेक्ट अहेड. So these are the basic things, but the moment you are sure कि आपको development करना है, take an action immediately, not in haste, but take a calculated action. Yeah. Yes. So. Okay. Next question again, Anant Raman sir. I would ask it to you again, sir. More or less same question है, but here we got into an agreement with a builder who never worked since the last 3 years. Builder के साथ agreement हो चुका है, but 3 साल से कुछ काम नहीं हुआ है. Now we have got a notice from BMC and the builder says he is not in a position to take the project ahead because of COVID. What can we do on urgent basis? So again, more or less तो same ही रहेगा, but legalities यहाँ पे add हो जाएगी. तो sir, please if you could throw some light. You are right. अभी ये situation में more than technical, legal issues comes. Now you are saying that the society entered into a development agreement 3 years ago. 3 years back. Now. COVID, yes, it is a real issue for the last 4 months, 6 months. But 3 years is a long time for anyone to get your permits and start construction. In some cases, small projects, it can even be completed. So I don't think it's very clear that the builder probably is very hesitant to go ahead at all and probably looking for a exit route. And in this particular situation, it seems to me that society is in a good position to say that it is unreasonable on the part of builder not to move at all in spite of having a development agreement. And they can look at the option of termination and proceeding with self-development, taking control in their hands. That is the first step. And for this, just for this, obviously, once again, the latest feasibility report has to be done. Development agreement, those numbers may or may not be valid anymore. Latest feasibility report is done. You can get that clarity and then initiate legal proceedings. Right. प्रणय जी, I would like you to add, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि शायद जो numbers हैं वो same नहीं रहेंगे.
So and also legally कैसे होगा sir, please if you could so yeah, just to add on to your for the society particularly legally, where definitely this is a challenge for the society, where the developer has become irresponsible, or I would say unreasonable, to take the project ahead. That is the legal part of the project, अगर मैं legally उसको देखूँ. But practically अगर देखा जाए, अगर कोई builder ने ना बोल दिया है, that is, I would say practically, that is a fortunate scenario for the society. Project शुरू करके ना बोल दे या अटक जाए, practically that would be much more harmful for the society as well as the developer. शुरू होने के पहले ही अगर ना बोल दिया है, ठीक है, लीगल केस हम करेंगे, जो भी होगा that is a separate issue. But practically I think it's a good part for the society where things have been clear before they started something. Obviously now there is a problem कि उसने ना बोल दिया है due to COVID or due to any reason whatsoever. But now what next? So the other step is to obviously either legal route, same thing, get into the same thing, appoint another developer as if society wish to, or opt for self-development. right. But again legally उन्हें वो clear out करना पड़ेगा, फिर ही आगे जा सकते हैं. Developer ने सामने से बोल दिया है, तो that is an NOC which the developer has already been given. Right. If this is the clarity, अगर वो society में let's take both the scenarios. अगर वो डेवलपर ने सामने से एनओसी दी, अगर एनओसी नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग कोविड के दौरान नहीं करते, दैट मींस देयर इज अ न्यूसेंस फॉर द प्रोजेक्ट. दैट मींस ही डज नॉट वांट टू टेक द प्रोजेक्ट आगे करना भी नहीं है, लेकिन बैकआउट भी नहीं होना है. देन देयर इज अ सीरियस इशू फॉर व्हिच वी नीड टू टेक हिम इमीडिएटली टू द कोर्ट. राइट. ठीक है, तो अगर जैसे सर ने बताया कि अगर बिल्डर इज विलिंग टू लेट गो ऑफ द प्रोजेक्ट, तो आपको एनओसी मिल जाएगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बट अगर वो प्रोजेक्ट भी नहीं करना चाहता है एंड अगर उसे एनओसी भी नहीं देना है, देन इट्स जस्ट अ न्यूसेंस वैल्यू, और आपको लीगल रूट से जाके ही बिल्डर को टर्मिनेट करना पड़ेगा. एंड पैरेलली आफ्टर टर्मिनेशन, पैरेलली यू कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट फॉर द प्रोसेस फॉर द वर्क. ओके. सर एक और क्वेश्चन है. आवर सोसाइटी इज लोकेटेड इन अंधेरी वेस्ट. वी हैव मेजर लीकेजेस व्हेनेवर मॉनसून्स हिट अस, and the condition of the building is good for another 1 or 2 years maximum. We have 98% consent for self-redevelopment. 2 members are not giving their consent and they want a builder to redevelop the project. How do we go ahead with or without them? तो सर एक सोसाइटी है जहां पर obviously काफी लीकेजेस है, कंडीशन अच्छी नहीं है, and I'm guessing 9800 अगर members है तो 98 members ने consent दिया हुआ है, but 2 members ने अपना consent नहीं दिया है because they want a builder to do the project. उन्हें redevelopment में जाना है. So how can they go ahead with or without these 2 members? So see legally what are the requirement and किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं. सोसाइटी के पास अगर 51% मोर देन 51% कंसेंट है, सोसाइटीज आगे बढ़ सकती हैं. एज पर बैंक्स पॉलिसी, इफ दे हैव 75% कंसेंट, बैंक को सैंक्शन होगा और 100% कंसेंट के बाद डिसबर्समेंट होगा. सो मूविंग फॉरवर्ड डेफिनेटली आप प्रोजेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं, आप आईओडी प्लान्स अप्रूव कर सकते हैं, आईओडी बढ़ सकते हैं. बट प्रैक्टिकली जब सिचुएशन आएगी आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की या डिसबर्समेंट लेंगे, आपको 100% कंसेंट चाहिए. आइदर ऑफ द रूट सोचते हैं, सोसाइटी सोचते हैं हमें सेल्फ डेवलपमेंट में 100% कंसेंट चाहिए. ऐसा नहीं है, रीडेवलपमेंट में भी आपको 100% कंसेंट चाहिए. 100% कंसेंट का मतलब सिर्फ ऑन पेपर कंसेंट नहीं है. अगर आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, प्रैक्टिकली आपको 100% पीसफुल वेकेट बिल्डिंग चाहिए. सब वेकेट करके जाएं और आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें. इट इज अ सिमिलर थिंग इन सेल्फ डेवलपमेंट ऑल्सो, जहाँ पे आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको 100% मेंबर्स वेकेट करने चाहिए. ये केस में जैसे 2 मेंबर्स अगर वेकेट नहीं करते हैं, देन फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द डेवलपमेंट मैनेजर इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम. 2 मेंबर्स वेकेट नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते. काफ़ी सारे सिचुएशंस में ऐसा होता है कि वो या तो उनको निगलेक्ट किया जाता है सोसाइटी की तरफ से, या तो उनकी कोई सुनता नहीं है, और देयर आर अदर साइड ऑफ द स्टोरीज आल्सो वेयर द मेंबर्स डू नॉट वांट टू टेक द प्रोसेस साइड. सोसाइटी उनको दे मे हैव सम प्रीवियस ईगो इश्यूज या कुछ एडमेंट होंगे कि उनको प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़ा रहा. देयर कुड बी अदर इश्यूज, बोथ द साइड्स ऑफ द स्टोरी. सो आफ्टर कम्युनिकेशन वी कम टू नो कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम. इफ दे आर एडमेंट, कोर्ट इज द अल्टीमेट रूट. हाई कोर्ट इज द अल्टीमेट रूट, जहाँ पे आप कंसेंट नहीं, कोर्ट ऑर्डर के थ्रू उनको वेकेट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको बैंक भी फंड करेगी, जिसके बेसिस पे प्रोजेक्ट भी आगे लेके जा सकते हैं.
So court is the ultimate route. Society should not vacate until and unless we get the court order. कोर्ट ऑर्डर सोसाइटी के पॉजिटिव फेवर में आए, जो कोर्ट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सोसाइटीज के लिए कि इसका कॉस्ट कितना होगा और टाइमलाइंस कितने होंगे. तो जो कॉस्ट और टाइमलाइंस है फॉर द हाई कोर्ट मैटर, यूजुअली ऐसे काफ़ी सारे प्रेसिडेंट्स हैं रीडेवलपमेंट में. सेल्फ रीडेवलपमेंट में भी हमारा एक प्रोजेक्ट कोर्ट में हमने फाइल किया है फॉर नॉन कंसेंटिंग मेंबर्स, जिसका जस्ट सैंक्शन आता ही हम लोग उसको प्रोसीड करने वाले हैं मैटर को. So probably in 2 to 3 months of time, we are expecting a positive order from the court, and the cost also would not be to a greater extent. Okay. Anandraman sir, would you like to add something, because there are 2 members जो consent नहीं दे रहे हैं. I think Pranay has already handled it in a comprehensive way. एक ही है कि obviously the first step would be to listen to them very closely, along with your development manager, to find out whether any solution is possible with it. That's the first step. Then if that is not possible or not working out, then you need to proceed in the way Mr. Pranay has explained. Fair. Okay, now a lot of questions, काफी लोग ने भी questions लिखे हुए हैं. Questions में जाते हैं and उन्हें solve करते हैं. सबसे पहला question जो है वो Mr. सचिन नार्वेकर जी का है. With the revised DCR norms against dilapidated buildings which are more than 30 years, BMC has offered an incentive of 40% added space. When considering self-redevelopment, how do you look at it? Also, if there is not any space to practically get 40%, how can this be catered? तो जो नए DCR norms है उसके हिसाब से dilapidated buildings के लिए जो 30 years के ऊपर के हैं, BMC ने 40% इंसेंटिव ऐसे ऑफर किया है फॉर एडेड स्पेस. तो क्या वो पहले तो एप्लीकेबल है? सेकेंडली, अगर वो एप्लीकेबल है और अगर वो हम लोग प्रैक्टिकली 40% नहीं ले सकते हैं, सो उसको किस तरीके से केटर करना चाहिए? So यहाँ पे एक just for the correction, it's not 40%. और dilapidated buildings के लिए कोई incentive नहीं है. 30 years old building के लिए incentives है. Right. So just to be clear. And also request to everyone that please messages पे सिर्फ विश्वास नहीं करें, और एक DCR खुद देखें या कोई आर्किटेक्ट से क्लैरिटी लें, बिकॉज मैसेजेस में काफ़ी रूमर्स चलते हैं, काफ़ी फेक न्यूज़ चलती हैं. तो ये 40% वाला जो मैसेज है, इट्स बीन सर्कुलेटिंग सिंस लास्ट 3 years, where 10 square meter or 15% of the entire built up, whichever is higher, is an incentive for a building over and above 30 years old. Irrespective dilapidated है या नहीं है, उनका 30 years old होनी चाहिए, और that is part of the FSI. So that is a less purchase in TDR. आपको TDR उतना कम purchase करना होगा. That is not an additional FSI. Okay, so overall आपका FSI उतना ही होगा, लेकिन आपको जो TDR का component purchase करना होता है outside market से, उतना कम purchase करना पड़ेगा आपका ये incentive की वजह से. So that is a benefit which is being given. Yeah. Okay. Next question Mr. Mukesh Doshi का है. Sir, technical है. Anandraman sir, I would like you to answer. Is there any act passed by MHADA that they would cater to dilapidated projects? ऐसा कुछ act है क्या sir? I think as far as cess buildings is concerned, it is very clear. But this is a recent news actually that it may come about, but I don't think there is any circular which has been issued which clarifies this on it. Yeah, so what is pending right now? So as of now, the MCS Act for dilapidated buildings has changed by MHADA. To give a clarity, MHADA has more than 14,500 buildings declared dilapidated. So dilapidated buildings का ये बहुत major chunk MHADA के Board of Buildings and Repairs के अंदर आता है, जिसमें सेस्ट बिल्डिंग्स काफ़ी सारी डिलैपिडेटेड कंडीशन में है. उसकी वजह से गवर्नमेंट ने इमीडिएट एक्शन लिया लास्ट इन अ मंथ्स टाइम. दे हैव अमेंडेड दिस एक्ट फॉर डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स, वेयर MHADA विल टेक ओवर दीज डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स एंड डेवलप द प्रोजेक्ट, गेट इट एट एन इमीडिएट बेस. दो द एक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड, पॉलिसी फ्रेम होने वाली है, बहुत जल्दी पॉलिसी भी आ जाएगी, उसके बेसिस पे ये एक्शन लिया जाएगा, और ये काफ़ी प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है, विच इज़ I think which is a good move by the government. Okay, so clarify करने के लिए MHADA इसको take over करेगी, but
एज ऑन डेट अब तक वो पूरा क्लैरिटी नहीं है. That's what you're saying. पॉलिसी एक्ट चेंज हो चुका है, पॉलिसी इज अंडर फ्रेमिंग. Is getting framed. Okay, okay. ठीक है. Next question. Mr. Yash ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ लॉन्ग कैन अ बिल्डिंग सर्वाइव आफ्टर द स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन डन एंड इट सेज मेजर रिपेयर्स अंटिल वी डिसाइड फॉर रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट. तो यश जी आपका क्वेश्चन ये है, यश जी का क्वेश्चन ये है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट करने के बाद उनका जो रिपोर्ट आया है वो मेजर रिपेयर्स बोलता है, बट कितना टाइम तक वो सस्टेन कर सकते हैं अंटिल दे डिसाइड कि रीडेवलपमेंट में जाना है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना है. So, for me, I will not have a specific answer until we see what is the report and what the project, what the building looks like. वो शायद आंसर उनके ऑडिटर ही बता सकते हैं ज़्यादा बेटर से कि कितने years तक वो सस्टेन कर पाएगा आफ्टर स्पेंडिंग दैट अमाउंट ऑफ कॉस्ट. बट with our experience, any building which is over and above 30 years old, और अगर कुछ रिपेयर्स, मेजर रिपेयर्स की बात की जाए तो मेजर इज आल्सो वेरी सब्जेक्टिव, बट इसकी अगर बात करें तो भी वो ज़्यादातर 2 साल 3 साल 5 साल, डिपेंड्स ऑन व्हाट द कंडीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज, उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं व्हाट इज द क्वांटम एंड व्हाट इज द कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिस्टर श्रीकांत का है, डू बिल्डिंग्स व्हिच आर डिलैपिडेटेड गेट एनी एडिशनल बेनिफिट्स फ्रॉम बीएमसी और माडा? अनंतरमन सर जी, आपके लिए जो बिल्डिंग डिलैपिडेटेड है, क्या उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं? Actually, there are no additional benefits as per DPCR 2034 for dilapidated buildings. It is as per the standard rules of FSI based on the road width and the location. It is already defined. In some places only zonal FSI है उनका. Road width अगर कमती है तो केवल zonal FSI मिलेगी 1.33. Road width 9 के ऊपर है so they'll be able to take advantage of TDR. Right. There are no additional benefits just because it is dilapidated. Okay. So ना ही FSI में कोई benefits है, ना ही कोई concessions है. Specifically अगर आप dilapidated है तो it remains the same. Yeah, specifically नहीं है. Okay. General is okay. ठीक है. Another question is by Mr. Lal Bhavnani. Sorry. RERA responsibility. This is regarding RERA responsibility. Is the managing committee responsible for RERA? What are the implications if the project is delayed or not completed in self-redevelopment? Pranay sir, if you can answer this, please. So, firstly, we need to understand what is RERA. What is a compliance? So, what is RERA is Real Estate Regulation Act, but उसके actual practical note पे development में क्या controls होते हैं because of which people feel कि RERA Act है तो risk है. RERA Act है तो risk नहीं है, but RERA Act है तो कुछ controls हैं जिसके से project safe है. So please understand. So there are two major implications because of RERA. One thing, एक वो financial control लेके आता है, एक financial discipline लेके आता है project में, जो previously before RERA, जो pre-RERA times था जहाँ पे project में आप 100% developer flat sale कर रहा था और वो saleable component लेके वो शायद दूसरे project में utilize कर सकता था. ये same project में utilization नहीं होती थी. यहाँ पे after RERA that has been controlled by the RERA authorities, where 70% of all the sales revenue has to be reinvested in the project itself. Only 30% can be withdrawn. So ये clarity और ये discipline has come because of RERA. That is one. Second part is where the timelines are concerned, where you have to commit a timeline. जो इनका question है, जो timelines के constraints हैं कि आपके 3 साल का project होना है, तो अगर आपने 1 साल एक्सटेंड हो गया, 6 महीने हो गया, तो who will be liable and whether society के ऊपर क्या आएगा? Yes. So I would divide into two questions basically. Okay. तो पहले तो मैनेजिंग कमिटी लाइबल होगी क्या, और लाइबिलिटी है तो क्या लाइबिलिटी है, एंड टू ओवरकम दिस लाइबिलिटी व्हाट इज द सॉल्यूशन. सो टू बी वेरी क्लियर दैट अंडर रीडेवलपमेंट society becomes a co-promoter where society also is liable in a redevelopment. Builder redevelopment may be directly, indirectly, society is part of the project. Okay, right. They are co-promoters. In self-redevelopment, society is the only promoter.
So definitely society is liable in self-redevelopment directly. But in this case, managing committee जब आती है, managing committee liable होती है. Managing committee is just the representative of the society. Those are office bearers, but the entire society is definitely liable. Okay. ये liability क्या extent तक आती है, वो discuss करें. तो ये liability is for the time frame. अगर आपने 3 साल का plan किया है project, 3 साल का construction timeline डाला है, तो अगर 3 साल का 3.5-4 साल हो गए, then there could be a penalty levied by the society to society has to pay some penalty to the buyers. Now, how this is planned in self-redevelopment so that it becomes almost negligible risk for the society. कि किस तरह से प्लान किया जा सकता है. आप सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन तभी स्टार्ट करें जब आपके पास फाइनेंस हाथ में हो. Right. तो टाइमलाइंस वेरी होने के 2 ही कारण होते हैं, फाइनेंस एंड अप्रूवल्स. Right. I would add third as a reason where there are non-consenting members. बट आपके पास जब ये तीनों चीजें हैं तब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, तब तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करें. आपके पास कंप्लीट आ चुका है या कोर्ट ऑर्डर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आपके पास एंटायर प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल क्लोजर है. दैट मींस यू हैव गॉट द सैंक्शन, यू हैव गॉट द डिसबर्समेंट्स, आपके पास प्रोजेक्ट फाइनेंशियली सिक्योर्ड है. एंड थर्ड, आपके पास सारे अप्रूवल्स आ चुके हैं. आप ये तीनों चीज सिक्योर्ड है, दैट मींस प्रोजेक्ट इज सिक्योर्ड, यू कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट. दैट इज वेयर यू कैन डिफाइन द टाइमलाइंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन. आप 2 साल होना है, 2.5 साल होना है, 3 साल, आप टाइम डिफाइन कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पेनल्टीज डाल सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन टाइम पे नहीं करता है. और ये पेनल्टीज इस तरह से डिफाइन की जा सकती हैं कि कल जाके अगर कोई पेनल्टी पे आप सोसाइटी पे है तो हम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रिकवर कर सकते हैं. And instead of giving a 3 years period, 2 years period, give 3 months or 6 months grace period for the contractor and another 6 months period for RERA authorities. Okay. तो इस तरह से प्लान करके अगर करें, where society will be safe, secured and 100% sure कि ये प्रोजेक्ट ये टाइम पे कंप्लीट होगा. Right. तो just to clarify again, रीडेवलपमेंट की जब बात होती है बिल्डर के साथ, उसमें भी रेरा में सोसाइटी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज दे आर समवेयर को प्रमोटर्स इन रेरा. सेल्फ रीडेवलपमेंट में वो लोग डायरेक्ट प्रमोटर्स हैं, बट यहाँ पर अगेन पूरा कंट्रोल उनके पास होता है. एंड जैसे आपने बताया कि सोसाइटीज को जब तक सारे परमिशंस नहीं हो, जब तक फंडिंग नहीं हो, और तब तक उन्हें विकेट नहीं करना चाहिए. सारे कंसेंट होने के बाद ही विकेट करना चाहिए. और रेरा में भी टाइमलाइंस में बफर रखना चाहिए. ऑल्सो जो कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं उन्हें भी एक ग्रेस पीरियड देना चाहिए सो दैट इट गोज स्मूथली. बट जैसे आपने बताया कि पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऐसा नहीं है कि मैनेजिंग कमिटी के ऊपर पूरा आ जाएगा. इट्स द एंटायर सोसाइटी हु हैज टू collectively gain it, right? Yeah, and sir, anything? As such, again, there's no liability, but there is only the penalties that may occur because of the delay in cost. Right. That is where we day one पे हम लोग को पहले ही बफर करके रखें contractor के इसमें. We give a back-to-back penalty on the contractor itself. Okay. Anantraman sir, technically, would you want to add something on this? I think procedure-wise it's been clarified. The advantage that we see in handling this particular situation, ये जो situation है, in self-redevelopment we are in a much better situation. क्योंकि एक एक रिस्क जो है वो स्टेज बाय स्टेज रिमूव होती जा रही है. That is what. फर्स्ट परमिट रिस्क है तो वो रिमूव हो गई, फिनांस रिस्क है तो वो रिमूव हो गई, अगर लीगल इश्यूज के कोई रिस्क है तो वो रिमूव हो गई. ओनली द कंस्ट्रक्शन के जो अनसर्टेनिटीज है वो एनीवे सबके हैं. अनसर्टेन दैट इज ओनली व्हाट इज रिमेनिंग. तो उस पे बिकॉज इफ इट इज साइंटिफिकली अगर प्लान करते हैं तो इतनी लगेगी बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. या पाइलिंग है, बेसमेंट है, हाँ, कितने पोडियम्स है, साइंटिफिकली टाइमिंग इज प्लान. उसी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनाएं, उसी के हिसाब से ग्रेस पीरियड रखें, उसी के हिसाब से एक बैकअप रखें based on the penalties which you discussed. Then systematically it can be addressed in self-redevelopment. Okay. So Mr. Bhamrani, I'm sure आपको clarity मिल गई है. Another question is from Mr. Nayan Shah. Can you explain the difference between self-redevelopment and repairs? So self-redevelopment और repairs में क्या difference है? आप इसके benefits के बारे में कुछ बता सकते हैं? I think he means कि difference क्या है? Should we choose for repairs or should we choose for self-redevelopment? Completely different things. Repairs is आप existing structure को repair कर रहे हैं with your own cost. That is a temporary thing, but that is one of the solution. The other permanent solution is to get it developed
आप पूरा डिमोलिश करके उसको रीडेवलप कीजिए राइट राइट थ्रू अ सेल्फ डेवलपमेंट रूट और बिल्डर रीडेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट एंड रिपेयर्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. फ्रॉम द बेनिफिट्स पर से आपको यहाँ पे कॉस्ट डालना होगा जो आपको आज नहीं 5 साल के बाद फिर भी डेवलपमेंट करना है. और सेल्फ डेवलपमेंट में आपको कॉस्ट नहीं डालना होगा. इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी यू मे earn or you may get something you may get a surplus. development. ठीक है. And sir, one of the most asked questions today, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं कि कई न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आ रहे हैं, कई मैसेजेस आ रहे हैं. हेलो. या इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कि आरबीआई ने सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए फंडिंग रोक दी है. क्या सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए फंडिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या एमडीसीसी बैंक लोन सैंक्शन करेगी कि सब कुछ स्टैंड स्टिल हो चुका है? तो सर प्लीज, इवन तो वी हैव डन अ फाइनेंस रिलेटेड सेशन ऑलरेडी, प्लीज आप फिर भी अगर बता सकते हैं प्रणय सर और अनंत रमन सर कि क्या करंट एक्चुअल क्या है और कैसे आगे फ्यूचर है सेल्फ डेवलपमेंट. So I think as far as the part is concerned, just on an immediate thing where the article is concerned, उसमें काफी कुछ facts भी हैं कि कुछ correspondence हुए हैं, but the other side of the story is also that NABARD has been auditing the projects of self-redevelopment, has been auditing the bank, which is in consent with the bank. Okay. हमारे भी कुछ projects में audit हुए हैं जो self-redevelopment के, so NABARD is already in consent and positive for self-redevelopment. It is only part of the process which are being resolved by the bank at an upper level. So I think वो अपने pace पे resolve होंगे. We expect जो momentum है वो momentum जारी रहे. Things are positive and will be positive. So for sure. Anandraman sir, anything you would want to add? No, I think it is procedural at this point of time. So a little bit of waiting, I think, will clarify matters. So as far as policy is concerned, things are very clear from bank's end. And anyway, this is the way to go forward. Is seen as one of the solutions for Mumbai as a whole. And there are no negative perceptions about the whole system as such. So it's a matter of time before clarity comes. तो जितने भी व्यूअर्स का ये क्वेश्चन था, अगेन जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट. टॉप लेवल पे भी बात चल रही है कि इसको किस तरीके से परमानेंटली रिजॉल्व कर देना चाहिए एंड सेल्फ डेवलपमेंट फंडिंग में कुछ दिक्कत नहीं आएगी. एंड अगेन एनीवे हमारी टीम भी है आपके साथ. We will take care of all of this. We will ensure funding for the project. So that's nothing that you have to worry about. Once again, sir, काफी questions हैं जो हम लोग ले नहीं पाए because of time constraints. So I would request कि जिसके भी questions हम लोग answer नहीं कर पाए, आप please हमें mail कर सकते हैं info@vdevelopment.in पे. मैं last में एक screen डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कहाँ mail करना है. और आप हमसे in touch रह सकते हैं. You can connect with us. And हम लोग वन ऑन वन आपके सोसाइटी के साथ मीटिंग कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम्स. जैसे आज अनंत रमन सर एंड प्रणय सर है जिन्होंने आपको पूरा बताया. जस्ट टू गिव एन एक्सप्लेनेशन अबाउट अनंत रमन सर, वो कहाँ से आते हैं, उन्होंने जो अपनी टेक्निकलिटीज आज शेयर की हमारे साथ. ही हैज वर्कड विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांड्स. ही इज द वन जिन्होंने पूरा सेल्फ रीडेवलपमेंट की जो हम लोग की स्ट्रैटेजी है, जो पूरा प्रोसेस हम लोग ने बनाया है रीडेवलपमेंट का, ही इज द वन हुज एक्चुअली मेड इट एंड ही इज बीन हैंडलिंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स. तो थैंक यू सो मच अनंत रमन सर कि आपने अपना इनपुट दिया हमें. एंड इवन प्रणय सर, थैंक यू, काफी सारी क्लैरिटी मिली. Aditya, sorry, I would actually just like to conclude with something for the societies. Sure. But also like Ananth Raman sir, I'm glad that we have him on the today's panel, and we want to use and his suggestions for these dilapidated societies. Sir, दें उसके पहले मैं एक छोटा सा societies को कुछ बोलना चाहूँगा कि yes, please. dilapidated buildings are in a critical state right now. Irrespective whatever the solutions or whatever the problems are there outside. आपने जो आर्टिकल की बात की, ये भी एक one of the temporary problem है. ऐसे काफी सारे challenges हैं. DCR का भी change होता है, amendments आते हैं. This is an ongoing process of this industry. So the beauty of self-redevelopment is the things are in your control. Things are in our control. Society के control में सब कुछ होता है. आप किसी को power नहीं देते हैं. सारी चीजें decisions आप होते हैं. आज जो भी project है, none of the societies are in a panic state. ठीक है, बैंक अगर रुकती भी है तो भी कोई पैनिक नहीं है.
क्योंकि पूरा कंट्रोल उनके पास है. सॉल्यूशंस निकलेंगे आइदर दिस और दैट. देयर आर n number of solutions. So there are n number of solutions only in self redevelopment which is possible, because the only major thing is because this entire project is in your control. कंट्रोल आप आपके उसको पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं. बट अगेन कमिंग बैक टू द सिचुएशन इज वेयर आप सारे प्रॉब्लम सोचेंगे कि पूरी क्लीन स्लेट होगी ऑफ द इंडस्ट्री. अगर सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी तब हम लोग इनिशिएट करेंगे प्रोजेक्ट. सो प्लीज ये सिर्फ एक ड्रीम है. इस तरह से कभी ये प्रोजेक्ट्स और ये इंडस्ट्री नहीं होती. इंडस्ट्री इज कीपिंग ऑन इवॉल्विंग. ये जितने भी चैलेंजेस आते हैं एक अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहे हैं और ये इवॉल्व हो रही है इंडस्ट्री. सो माय रिक्वेस्ट फॉर dilapidated buildings is take an immediate action. या Various solutions for the dilapidated buildings, for the redevelopment, self redevelopment. आप किसी चीज का वेट ना करें. सबसे पहले आपका घर और आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है. प्लीज टेक एन इमीडिएट स्टेप. डोंट वेट फॉर एडिशनल इंसेंटिव्स, एडवांटेजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट. इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे तो भी आपको डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है एडिशनल फैसिलिटी के लिए. आपका सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट हमेशा है. राइट. And let's come together. Let's start this process immediately before we see another building coming down. Yeah, that's important, right? It's quite Yes, sir. heartbreaking that we see buildings coming down. There are so many deaths happening. Hundreds of deaths happened in last 5 years. So I think it's our responsibility to take this project ahead, to take the buildings ahead, to construct those dilapidated buildings and see a new Mumbai altogether in the next few years. Because sir, also what is happening is there are many societies who are waiting for that benefit. कई सोसाइटीज बोलती है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए एक जीआर पास किया गया है, उसको सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाएंगे तो हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो बेनिफिट्स आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे. सो अगेन यस, आई थिंक अगेन dilapidated buildings, आपकी नीड क्या है? आपका नीड बेनिफिट है तो प्लीज आप बेनिफिट के लिए रुकें. बट आई डोंट थिंक सो फॉर अ dilapidated building, any dilapidated building would wait for a benefit to happen. राइट. अब बेनिफिट मिलेगा तो हम लोग करेंगे. मेरे को नहीं लगता है कि कोई dilapidated बिल्डिंग वो थॉट प्रोसेस से वेट करे. dilapidated बिल्डिंग का थॉट है कि हमें इमीडिएटली रेंट चाहिए, इमीडिएटली घर चाहिए, तो आप इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए. और जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स आएंगे और प्रॉब्लम्स आएंगे, बट सबके सॉल्यूशंस हैं. आज शायद ये सबने एक्सपीरियंस किया है. एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ हैज एक्सपीरियंस दिस आफ्टर कोविड. सबके घर में प्रॉब्लम्स आई बट सबने रिजॉल्व किया एंड एवरीबॉडी स्टिल देयर. We are talking about development. We are not talking about problems today. Right. So this is one of the greatest example that we have in hand. I think that is where we have learned and we should move forward. Anantraman sir, please, how would you like to conclude? First thing, of course, as a technocrat, I'll be happy and relieved if I can save lives. Sure. So that's one of the reasons why I am passionate about this self-redevelopment. That's one issue. I think in case of dilapidated buildings, which is the core objective of the discussion today, so we need to be responsible, take responsible decisions. That is the main thing. Now, in this, as professionals, what is the best we can do to remove the hesitancy of societies who are in trouble? So, clarity and consensus, ये दोनों पैदा करना है. Clarity leads to consensus, which leads to quick decision making, which leads to appointing a competent resource for taking the project forward. So जैसे हम even spiritual field में बोलते हैं, start walking and the path will become clear. So it is necessary to take that first step, getting that clarity and working out that consensus within and taking that first step and first decision. Yeah. I think that is the most important thing. So please act immediately on taking that first step. That would be my view. Thank you. So वही कंक्लूड करने के लिए कि प्लीज आप वेट मत कीजिए कि हम लोग करेंगे. वन फाइन डे आपको नोटिस आ जाए बीएमसी से टू वेकेट. ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए. एंड आप जो डिसीजंस भी लेते हैं वो प्लीज सब कुछ सोच समझ के लीजिए एंड फिर ही आप आगे बढ़िए. सो ऑन दैट नोट, एंड अगेन अगर किसी के क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज हमें मेल कर सकते हैं info@vdevelopment.in पे, एंड हम लोग की टीम आपके साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट करेगी एंड वील एक्सप्लेन टू यू कि आपकी प्रॉब्लम किस तरीके से रिजॉल्व करनी है, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम.
So we shall conclude. Anything you want to add, Mr. Pranay and Mr. Anantraman? And thank you. I think It was great. Okay, so we'll keep you posted about the next session. Thank you so much for joining, and please again take care and stay safe. Thank you. Yeah. Bye. Thank you. Thank you.